अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। T8 हम अपना जो है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं जी। कॉम्प्रिहेंशन है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं और इसमें एनालॉजी भी है। पहले हम अपने एज पर रूटीन, चूँकि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है तो पहले हम उसके वो पढ़ लेते हैं questions. The author might have stated his rule of the road as: do not walk in the middle of the road, follow the orders of the policeman, do not behave inconsiderately in public, do what you like in private. The author's attitude to the old lady in the paragraph 1 is condescending, intolerant, objective, sardonic and supportive. Then the sentence, it means up to curtailed, line 9 to 11 is an example of hyperbole, cliche, simile, paradox and consonance. Hyperbole कहते हैं बड़ी exaggerated use of language, cliche कहते हैं normal एक जो trend होता है, traditional style जो होता है उसको, simile we all know कि एक poetic tool है, paradox कहते हैं contradiction एंड कॉन्सोनेंस ये भी एक पोएटिक टूल है जिसमें आप जो है वो साउंड्स मिलाते चले जाते हैं। वेस्टर्न टेंस बेस्ट सम्स अप द ऑथर्स मेन पॉइंट, देयर इज अ डेंजर, लाइन 8 to 9, अ रीजनेबल, लाइन 39 to 40। ये मेन पॉइंट की बात हो रही है। इट इज़ इन द स्मॉल मैटर्स, लाइन्स 40 to 42, द ग्रेट मूवमेंट, लाइन्स 40 to 43, इट इज़ द लिटिल ब्लैंक 43 to 44। Number 5 पे जाएं जी। A situation analogous to the insolence of office described in line 14 would be a teacher correcting grammar errors, an editor shortening the text of an article, a tax inspector demanding to see someone's account, an army office giving orders to a soldier, a jailer locking up a prisoner. So ये इस तरह से हम जो है वो देखेंगे। A stout old lady was walking with a basket down the middle of a street in Petrograd to the great confusion of the traffic and with no small peril to himself. Peril कहते हैं danger. It was pointed out to her that the pavement was the place for pedestrians, but she replied, I am going to walk where I like. We have got liberty now. It did not occur to the dear old lady that if liberty entitled the pedestrian to walk down the middle of the road, then the end of such liberty would be universal chaos. Chaos कहते हैं disorder को. Everybody would be getting in everybody's else way and nobody would get anywhere. Individual liberty would not have become social anarchy. Anarchy भी कहते हैं disorder को, civil disturbance जो है उसको जो है वो आप anarchy कहते हैं। ठीक है जी। Then there is a danger of the world getting liberty drunk in these days, like the old lady with the basket, and it is just as well as to remind ourselves of what the rule of the road means. ठीक है। अब ये rule of the road जो है वो उसने एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो पीछे हमसे पूछा हुआ है कि रूल ऑफ द रोड उसके ख्याल में क्या है, और फिर लाइन नंबर 9 to 11 भी उसने हमसे पूछी हुई है, वो भी हम देखेंगे। इट मीन्स दैट in order that the liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. 9 to 11 ये देखें, ये क्या है? That is the perfect example of paradox. वो कहते हैं कि अगर सबको आज़ादी देनी है तो फिर इसका बेहतरीन हल क्या है कि सबकी आज़ादियाँ थोड़ी महदूद कर दी जाएँ। बिकॉज अगर हम सबको आज़ादी देते जा रहे हैं और हर बंदा अपनी मर्ज़ी से मुँह उठा के सब कुछ करता चला जा रहा है तो इट मीन्स कि दुनिया में क्या हो जाएगा, एक फसाद बरपा हो जाएगा, chaos बरपा हो जाएगा। तो ये पैराडॉक्स की बेसिकली एग्जांपल है। When the policeman say at the Piccadilly Circus steps into the middle of the road and puts out his hand, he is the symbol not of tyranny but of liberty. टायरनी कहते हैं जुल्म, क्रूएलिटी, कि जब वो हमें हाथ के इशारे से रोकता है पुलिसमैन तो वो जुल्म की अलामत नहीं है बल्कि वो क्या है, हमारी आज़ादी की ज़मानत है। You may not think so. You may, being in a hurry and seeing your car pulled up by this insolence of office, feeling that your liberty has been outraged. Outraged, disturbed, insolence कहते हैं odd behavior, बदतमीज़ी आप जिसको कहते हैं, rudeness. How dare this fellow interfere with your free use of the public highway? Then if you are a reasonable person, you will reflect. यहाँ पर reflect का मतलब think है.
that if he did not interfere with you, he would interfere with no one, and the result would be that Piccadilly Circus would be a maelstrom that you would never cross at all. You have submitted to a curtailment of liberty. Curtailment कहते हैं कम कर देना, reduction. You have submitted to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality. So ये उसका पूरी की पूरी एक philosophy है कि liberty does not mean absolute liberty. Liberty means liberty within the certain limits. Liberty is not a personal affair only, but a social contract. It is an accommodation of interests. It matters in matters which do not touch anybody else's liberty. Of course, I may be as free as I like. If I choose to go down to the road in a dressing gown, who shall say me nay? Nay, not. ठीक है, nay का मतलब है not, कि अगर मैं पर्सनल हवाले से कोई चीज़ करना चाहता हूँ, अगर मैं गाउन पहन के सड़क पर चलना चाहता हूँ, तो nobody will bother. You have liberty to laugh at me, but I have liberty to be indifferent to you. Indifferent कहते हैं मुख्तलिफ होना, सॉरी indifferent कहते हैं लापरवाह होना, कि आपको लिबर्टी है कि आप मुझ पे हंस सकें, लेकिन मुझे भी लिबर्टी है कि मैं आपकी उस हंसी को बिल्कुल भी बॉदर ना करूं. And if I have a fancy of dyeing my hair or waxing my mustache, which heaven forbid, or wearing an overcoat and sandals and going to bed late or getting up early, I shall follow my fancy and ask no man's permission. I shall not inquire of you whether I may eat mustard with my mutton, and you will not ask me whether you may follow this religion or that, whether you may prefer Ella Wheeler Wilcox to Wordsworth or Champagne to Shandy. ये दो ऊपर उसने पोइट्स के नाम बताए, और शैम्पेन और शैंडी जो हैं ये दो टाइप्स हैं बियर की. इन ऑल दीज and a 10,000 other details, you and I please ourselves and ask no one's leave. We have a whole kingdom in which we rule alone, can do what we choose, be wise or ridiculous. Ridiculous कहते हैं foolish, harsh or easy, conventional or odd, but directly we step out of that kingdom, our personal liberty of action becomes qualified by other people's liberty. Qualified का मतलब है यहाँ पर limited. I might like to practice on the trombone from midnight till 3 in the morning. If I went to, I might like to practice on the trombone. Trombone ये एक बाजा होता है. From midnight till 3 in the morning. If I went on to the top of the Everest to do it, I could please myself. But if I do it in my bedroom, my family will object. And if I do it in the streets, the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone must not interfere with their liberty to sleep in quiet. उसने एग्जाम्पल दी कि अगर मैं ट्रोम्बोन माउंट एवरेस्ट पे जाके बजाऊँ तो ठीक है, रात के 3 बजे भी आप बजाते नहीं, लेकिन आप गलियों में बजाएंगे, घर में बजाएंगे तो क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट करेंगे. There are lots of people in the world and I have to accommodate my liberty to their liberties. We are liable to forget this, and unfortunately we are much more conscious of the imperfections of others in this respect than our own. ये अब उसका मेन थीम है, ये आगे चल के डिस्कस भी होगा. A reasonable consideration for the rights or feelings of others is the foundation of social conduct. It is in the smallest matters of conduct, in the observance of the rule of the road, that we pass judgment upon ourselves and declare that we are civilized or uncivilized. The great movements of heroism and sacrifice are rare. It is the little habits of commonplace. Commonplace कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें, आम दुनिया की चीज़ें. It is the little habits of commonplace intercourse. Intercourse का मतलब interact. It is the little habits of commonplace intercourse that make up the great sum of life and sweeten or make bitter the journey. ठीक है जी, ये उसने अपना कंप्लीट किया. अब हम वापस आते हैं इस पे. The author might have stated his rule of road as do not behave inconsiderately in public. Rule of road के बारे में उसने क्या बात की है, ठीक है, मैं इसको लिख भी रहा हूँ इधर. नंबर 1 पे उसने क्या कहा है, do not behave inconsiderately in public. That is option C. Then
द ऑथर्स एटीट्यूड टू द ओल्ड लेडी इन पैराग्राफ 1 इज कॉन्डिसेंडिंग। कॉन्डिसेंडिंग कहते हैं रिजेक्टिंग, ठीक है, किसी चीज़ को तनकीद करना, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट करना, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उसको ऑब्जेक्ट ही कर रहा है, ही इज़ नॉट एग्रीइंग, उसके साथ डिफर कर रहा है। इंटॉलरेंट तो होता है कि बहुत ही शदीद वो उसको बुरा भला कहना शुरू कर देता, तो इंटॉलरेंट होता। ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि फैक्ट्स वगैरह को एनालाइज करने के लिए। जैसे आपको याद होगा हमने चैप्टर ये जो टेस्ट 7 अपना पिछला किया था, उसमें वो जो पैराग्राफ था सुपर क्लस्टर्स के बारे में, वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव था। एंड देन इसी तरह सपोर्टिव और सार्डोनिक भी जो है उसका एटीट्यूड जो है वो नहीं है, ठीक है। सार्डोनिक बेसिकली कहते हैं मॉकिंग एटीट्यूड को ना, जिसमें आप किसी का इंतहाई किस्म का जो है वो मजाक उड़ाएं, ठीक है, उसको कहते हैं। द सेंटेंस इट मीन्स curtailed, यहाँ से इट मीन्स से लेकर curtailed तक 9-11 से, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। मैं फिर आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि सारे लोगों की लिबर्टी इंश्योर करने के लिए हमें सबकी जो लिबर्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। इट मीन्स इन ऑर्डर दैट ऑल द लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व्ड, द लिबर्टीज ऑफ एवरीबॉडी मस्ट बी curtailed। सो ये एग्जाम्पल है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ पैराडॉक्स, कि आप एक तरफ आप बात करें कि सबकी लिबर्टीज़ कर्टेल करने, सबकी लिबर्टीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो क्या है, हमें दूसरों की लिबर्टीज़ जो है वो दूसरों की कह रहा हूँ, सबकी लिबर्टीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सभी लोगों की लिबर्टीज़ जो है वो कर्टेल करनी पड़ेंगी। तो दैट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स, कि आप एक तरफ लिबर्टी देने की बात करें और दूसरी तरफ आप क्या करें, लिबर्टी जो है उसको ख़त्म करने की बात करें। देन नंबर 3 पर जाएं। इसमें जो ऑप्शन आपकी सेकंड में बनेगी ए, हमने ऑलरेडी लिख दी। थर्ड में जो आपकी ऑप्शन बनेगी दैट विल बी ऑफ पैराडॉक्स। देन विच सेंटेंस बेस्ट सम्स अप द ऑथर्स मेन पॉइंट, ये लाइन 39 और 14 मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। उसमें वो कहते हैं अ रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स ऑफ और फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट, ठीक है। यही असल बात है, यही उसका मेन थॉट थी कि असल हमारी रीजनेबल वे ऑफ लाइफ क्या है कि हम ना सिर्फ अपनी बात करें बल्कि दूसरों की बात को भी मुकम्मल तौर पर सुनें। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन आगे देखें जी, अ सिचुएशन एनालॉगस टू द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस। इंसोलेंस क्या थी जी, हमने अभी पढ़ा कि इंसोलेंस क्या है जी, बदतमीज़ी, उसकी रूडनेस या ऐसी चीज़ जो आपके लिए अनोइंग हो। तो अ टीचर करेक्टिंग ग्रामर एरर्स नहीं, वो तो ठीक लगेगा आपको। एन ऑडिटर शॉर्टनिंग द टेक्स्ट ऑफ एन आर्टिकल, वो भी सही लगेगा। अ टैक्स इंस्पेक्टर डिमांडिंग टू सी समवन्स अकाउंट्स, कि अगर कोई टैक्स इंस्पेक्टर आपसे आके कहे कि जी मुझे अपने पेपर्स दिखाओ, तो वो आपको डेफिनेटली लगेगा कि थोड़ा सा अनोइंग है, थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बिंग है। सो ऑप्शन सी will be considered the correct option। आगे देखें जी, नंबर 6 पे क्वालिफाइड मोस्ट नियरली मीन्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको डिस्कस भी कर रहे थे तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि क्वालिफाइड मीन्स लिमिटेड। नंबर 7 पे जाएं जी, द ऑथर assumes that he may be as free as he likes in किन में, all matters of dress and food, सिर्फ ड्रेस और फूड की बात नहीं की उसने। एनी सिचुएशन विच डज नॉट इंटरफेयर विद द लिबर्टी ऑफ अदर्स, ये बात है। उसने ये बात कही कि उन तमाम मामलात में मैं इंडिपेंडेंट हूँ जिनका ताल्लुक जो है वो, जिनसे जो है वो दूसरों की लिबर्टी जो है वो मुतासिर नहीं हो रही, ठीक है। सो ऑप्शन बी अगेन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8 पर आए जी, लास्ट हमारा क्वेश्चन। In the sentence we are all liable, line 38 to 39, ठीक है। अब वो क्या कहता है उसमें, लाइन 38
टू 39 पे वो कहते हैं जी, वी आर ऑल लायबल टू फॉरगेट दिस एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर मच मोर कॉन्शियस ऑफ द इम्परफेक्शंस ऑफ अदर्स इन दिस रिस्पेक्ट देन ऑफ आवर ओन। क्या हम अक्सर इसको भूल जाते हैं और हम अपनी बजाय दूसरों को जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसमें उसने क्या चीज़ बेसिकली पॉइंट आउट की है, एम्फोसाइजिंग हिज मेन पॉइंट तो ये नहीं था, काउंटरिंग अ जनरल मिसकॉन्सेप्शन, काउंटरिंग कहते हैं जवाब देना, मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं गलत फहमी। तो ये मिसकॉन्सेप्शन भी जो है वो नहीं थी, कब कहीं उसने ये नहीं कहा कि जी हम तो बड़े एक दूसरे से जो है ना एक दूसरे अपने बारे में बड़े कंसर्न रहते हैं, ठीक है, और अपने आप पे काम करते हैं, दूसरों की गलती को नहीं देखते, ऐसा तो नहीं कहा उसने। तो ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं है। सजेस्टिंग अ रेमेडी भी सजेस्ट नहीं कर रहा, रेमेडी कहते हैं सोल्यूशन को। मॉडिफाइंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज नहीं कर रहा। क्या कर रहा है, पॉइंटिंग आउट अ जनरल वीकनेस, कि हमारी जो अमूमी चीज़ है उसको वो हाईलाइट कर रहा है कि अक्सर हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारी लिबर्टी तब तक ही हमारी लिबर्टी है जब तक वो दूसरों को सफ़र नहीं करवा रही, ठीक है। अगर दूसरों से सफ़र कर रही हैं तो फिर हालात जो है वो बड़े ख़राब हो जाएंगे। देन नेक्स्ट देखें जी, हमारे सिनोनिम्स आ रही हैं और इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखते जाइएगा, साथ साथ हम करते जाएंगे। कोजेंट, द फर्स्ट वन, मैं इधर इसको लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए। कोजेंट कहते हैं जी कन्विंसिंग, लॉजिकल, उसके बारे में हम कहते हैं। तो टेंटेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो को है ना, ये भी एक तरह से आप कह लें कि एक रूट वर्ड है आपका, इधर मैं फ़िलहाल इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको कहीं यूनिटी, हार्मनी, इस कॉन्टेक्स्ट में ये जहाँ भी आएगा ना, ठीक है, मिलाना, ट्रैक करना किसी चीज़ को, इस कॉन्टेक्स्ट, जैसे आप कहते हैं कोहेरेंस, ठीक है, जैसे आप कहते हैं कंपनी, जैसे आप कहते हैं को एजुकेशन, को एग्जिस्टेंस, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इस्तेमाल होगा। तो कोजेंट, टेंटेटिव तो नहीं हो सकता। फोर्स्ड, फोर्स क्या है, मुसल्लत करना, तो ये तो यूनिटी हार्मनी के बिल्कुल अगेंस्ट है। अग्रेसिव भी क्या है, वो भी इसके अगेंस्ट है। सो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज़ कन्विंसिंग, और कन्विंसिंग ही जो है वो क्या है, वो हमारी सही ऑप्शन है। आगे देखें जी, डोटर्ड, डोटर्ड आपने पढ़ा हुआ है, उसमें मुस्तफ़ा कमाल में वो कहते हैं द गवर्नमेंट वाज ब्रांडेड एज अ गवर्नमेंट ऑफ टोडर्स एंड ट्रेटर्स, ठीक है। तो वहाँ पे डोटर्ड्स क्या हैं, बेसिकली वीक पर्सन्स, उनको हम कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है इसमें भी हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर ये 9 था MCQ, इसमें भी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट जो है वो कहते हैं मूव करना, ग्लाइड करना, बड़े स्लोली आप मूव करना, ड्रिफ्टिंग अवे, ठीक है। अक्सर आप सुनते हैं, हम ये जो क्रिकेट वगैरह देख रहे होते हैं तो बादल शादल आए हों, तो अक्सर एक बादल शादल आने के बाद जब हटते हैं बादल सारी, तो वो अक्सर कहते हैं द क्लाउड्स आर ड्रिफ्टिंग अवे, कि वो क्या कर रहे हैं, स्लोली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो होलसम, होलसम तो कंप्लीट कहते हैं, लेंथी तवील को कहते हैं, सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट को कहते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगी, ऑप्शन हमारे पास बचेगी जी, एक बार फिर से फ्लोट। तो ये तीनों की ऑप्शन जो है वो पहले तीनों की सी बन रही है। देन एलिवेट, नंबर 12 पे अगर हम आते हैं, एलिवेट कहते हैं बुलंद करना, ठीक है। एलिवेशन आपने सुना होगा, एलिवेटर, ठीक है, अक्सर हम कहते हैं। तो एलिवेटर क्या है, एलिवेटर वो चीज़ जो आपको ऊपर एलिवेट कर रही है। स्टॉलिड, स्टॉलिड कहते हैं स्ट्रॉन्ग, आपने पढ़ा हुआ है उसमें द फुलिश क्रैक में, वो कहता है स्टॉलिड क्रिएचर। देन कॉन्टेम्पचुअस, कॉन्टेम्पचुअस भी आपने पढ़ा हुआ है, रिडिकुलस, ठीक है, स्कफिंग के मानों में आता है।
आपने उसमें पढ़ा हुआ है शी मेड अ कॉन्टेम्पचुअस नॉइज बटन में, ठीक है, कि उसने हिकारत आमेज़ आवाज़ निकाली। रिजेंटफुल का मतलब भी होता है एक रिवोल्टिंग, ठीक है, ऐसी चीज़ जो गुस्से में, तैश में, अनॉयंस में आप करते हैं। तो एग्जॉल्ट ये भी आपने वर्ड पढ़ा हुआ है, उसमें वे कहते हैं आई हैव अ ड्रीम में ऑल द वैलीज विल बी एग्जॉल्टेड एंड द माउंटेन्स विल बी मेड लो। नंबर 13 पर आप जाएं तो आ रहा है जी जुवेनाइल। जुवेनाइल कहते हैं इमेच्योर को। आप अभी अपने एंट्री टेस्ट के लिए जब जा रहे हैं तो इसमें उन्होंने लिखा होता है कि या तो आप अपना CNIC नंबर देंगे, अपना CNIC जो कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो आप देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, जुवेनाइल कार्ड बनाएंगे। जुवेनाइल कार्ड क्या है, उन लोगों के लिए जो अभी 18 साल की उम्र को नहीं पहुँचे, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या होगा, जुवेनाइल कार्ड होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको जो है वो यूज़ करेंगे। तो जुवेनाइल क्या हुआ, इमेच्योर, यंग, चाइल्डिश। तो एपेथेटिक कहते हैं बेसिकली अ पर्सन हु इज स्टबर्न, जिसको बिल्कुल कोई रहम ना आ रहा हो। इमेच्योर कहते हैं जुवेनाइल को। सो जुवेनाइल की जो करेक्ट ऑप्शन आएगी दैट विल बी इमेच्योर, यंग। एबनॉर्मल और पेनफुल जो है दैट आर द कॉमन वर्ड्स, आपको इसका पता है। देन ऑस्टेरी बेसिकली कहते हैं ऐसा शख्स जो बहुत ही किफ़ायतचारी से काम ले रहा हो, दुनियादारी तर्क कर दे, ठीक है, और दुनिया के मामला से ख़ुद को अलहदा कर ले, उसको हम कहते हैं। तो डेस्टिट्यूट कहते हैं गरीब को, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है उसमें एंजल एंड द ऑथर एंड द अदर्स में, वो कहते हैं फॉर द डेस्टिट्यूट ब्रिटिश इन जोहान्सबर्ग, तो उसको कहते हैं। ऑस्टेंटेशियस कहते हैं ऑड, ऑकवर्ड, ये भी आपने पढ़ा हुआ है उसमें मिस्टर चिप्स में, वो कहता है वल्गर, ऑस्टेंटेशियस, जब वो उसकी बात करता है ना रॉल्सन की, कि हाउ ही इज़ फिलिंग अप द बॉयज़, हाउ इज़ फिलिंग अप द स्कूल विद रिच बॉयज़, तो उसमें वो कहते हैं और फिर उसमें ख़ास तौर पर टिपिकली मैं वो लाइन भी आपको बोल देता हूँ, जब वो कहता है कि वन ऑफ देम गेव हिज सन 5 pounds अ वीक पॉकेट मनी। वल्गर, ऑस्टेंटेशियस, कि ये सब कुछ क्या था, बड़ी घटिया और बड़ी अजीब व गरीब था, तो ये ऑस्टेंटेशियस है। तो ये तो उलट हो गया उसके ऑस्टेरी के। लाविश भी एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत शानदार, तो ये भी उलट हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बची, ऑप्शन हमारे पास बची डी, ठीक है, एस्केटिक भी आपने पढ़ा हुआ है, उसमें वो कहते हैं कि जस्ट लाइक द वियतनामीज हैव स्टूड द अमेरिकन टेक्नोलॉजीज, सो दीज एस्केटिक चाइनीज मिलिटेंट have gone straight to the roots of the problems that have plagued Asian countries for the thousands of years। ठीक है जी। इमेंसिपेट अभी हमने पढ़ा था पिछले टेस्ट में, आपको याद हो कल जब हम कह रहे थे। तो इमेंसिपेट क्या है जी, लिबरेट, उसमें एनोलॉजी में हमने पढ़ा था। तो इमेंसिपेट का सिनोनिम क्या आएगा जी, इमेंसिपेट का सिनोनिम है बेटे लिबरेट, एंड लिबरेट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, वेंगल 16 पर आए अगर आप, तो वेंगल होता है ईंट्स लेना, निकलवा लेना, ठीक है। तो पहले ऑब्टेन इज द राइट वर्ड, मैं आपको ऑप्शन में से बोल देता हूँ। ऑब्टेन क्या है जी, हासिल कर लेना किसी चीज़ को। वेंगल भी आपने पढ़ा हुआ है, गॉड बी प्रेज में वो कहता है कि मौलवी जी, had it been someone else, I could have easily wangled 5 to 10 rupees, 6 to 12 rupees गालबन कहता हूँ। तो ये वेंगल वही है। इम्पार्ट होता है इनकलकेट करना, कोई चीज़ दाखिल करना। ड्रिजल कहते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी को, और रिटॉर्ट अपनी बात बार बार रिपीट करना, ठीक है। वेव, नेक्स्ट देखें जी, वेव क्या है जी, आराम करना, रिलैक्स करना, ठीक है। ये वो वाला वेव नहीं है, ठीक है, जो हम ये वेव करने, हाथ हिलाने वाला वेव नहीं है। ये वो वाला वेव है जो आप कहते हैं प्लीज़ वेव ऑफ माय फाइन, कि मेरा जो फाइन है उसको क्या करें, रिलैक्स कर दें, उसको ज़रा फ्री कर दें मुझे। तो रिस्ट्रिक्ट
तो नहीं आ सकता, ये तो उसके एंटोनिम हो जाएगा। परमिट और एडमिट भी नहीं आ सकता, तो इसकी जो ऑप्शन बनेगी, जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी, दैट विल बी रिलैक्स। आगे देखें जी, वो कहते हैं कसम खाना, ठीक है। तो प्लेज इसका जो है वो करेक्ट सिनोनिम होगा, ये भी आपने पढ़ा हुआ है उसमें। ही वोड एज अल्लाह हिज विटनेस, ठीक है, नेवर टू यूज द पाउडर टोबैको ही लव्ड, ठीक है, व्हाइल लीविंग द शॉप। मौलवी अबुल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि ही वोड एज बिफोर अल्लाह एज हिज विटनेस, नेवर टू यूज द पाउडर टोबैको ही ऑलवेज लव्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ रहे हैं एनोलॉजी पे। और इसमें जो पहला है ऑलवेज एंड नेवर, मैं इसके साथ रिलेशंस भी लिखता जा रहा हूँ और ऑप्शंस भी लिखता जा रहा हूँ। ये क्या है? दे आर द एंटोनिम्स, ठीक है। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी भी नहीं। तो इसका क्या होगा? कॉन्स्टेंटली और फ्रीक्वेंटली, दे आर नॉट द एंटोनिम्स। सीरियसली और सोमली, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। ऑफन और रेयरली, ठीक है, दैट इज द राइट सिनोनिम, सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। नंबर 2 पर आए जी, कंसर्न्ड एंड इंडिफरेंट। अगेन ये क्या है? ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। इंडिफरेंट क्या होता है? लापरवाह, कि जिसे बिल्कुल किसी भी चीज़ की कोई परवाह ना हो, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। पहले ही इसका करेक्ट ऑप्शन है एडोर और लोथ। एडोर होता है बेसिकली किसी चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करना, बहुत ज़्यादा पसंद करना, और लोथ क्या होता है? उसी चीज़ को नफ़रत करना उस किसी चीज़ से। तो पहली ऑप्शन हमारी ठीक होगी। डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, ये तो सिनोनिम्स हो जाएंगे। बार पर ट्री क्या होता है? ये पाक शाख को कहते हैं, तो ये पार्ट ऑफ समथिंग हो जाएगा। और मिनट एंड आवर, ये भी क्या हो जाएगा? ये पार्ट ऑफ समथिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने में थे एनर्जी एंड डिसिपेट। डिसिपेट कहते हैं डिस्पर्स करना, उसको लेट आउट करना है इन अ वे, ठीक है। स्क्वांडर, वेस्ट करना, इन मानों में जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कंज्यूम कर लेना मतलब किसी चीज़ को, तो एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, ठीक है। तो मनी इज़ स्क्वांडर्ड, ये भी उसका फंक्शन है कि एनर्जी क्या की जाती है? कंज्यूम की जाती है, और रकम क्या की जाती है? खर्च की जाती है। सो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये फंक्शन ऑफ समथिंग, कि एनर्जी क्या की जाती है? वेस्ट की जाती है, कंज्यूम की जाती है। इन द सेम वे जो मनी है दैट इज ऑल्सो स्क्वांडर्ड। नेक्स्ट हम देखें जी, फॉक्स इज कनिंग, नंबर 22। ये उसकी क्वालिटी है। तो फॉक्स इज कनिंग एंड बीवर इज इंडस्ट्री। बीवर कहते हैं मेहनती शख्स को, ठीक है। तो सी ऑप्शन, इंडस्ट्री भी मेहनत से रिलेटेड, हार्ड वर्क से रिलेटेड जो है वो चीज़ आती है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कि फॉक्स विल बी कनिंग एंड बीवर विल बी इंडस्ट्रियस या इंडस्ट्री। देन नंबर 23 पर है जी, ब्रीज एंड हरिकेन। 23 ये क्या है जी? इंटेंसिटी। हरिकेन क्या होता है? तूफान, ठीक है। हरिकेन क्या होता है जी? तूफान। तो ओशन एंड रिवर, इनमें इंटेंसिटी का फ़र्क तो नहीं है, साइज़ का फ़र्क है।
देन गल्फ और कोस्ट, ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। आई और साइक्लोन, ठीक है, इनके दरमियान भी वो रिलेशन नहीं है। देन हिल एंड माउंटेन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया जी। आगे देखें, पार्क एंड रिक्रिएशन नंबर 24 अगर आप देखते हैं तो ये पर्पस है उसका बेसिकली कि पार्क इज़ यूज फॉर रिक्रिएशन, और बड़ी सिंपल सा इसका जवाब है, वेरी कॉमन, दैट किचन इज़ यूज फॉर कुकिंग। सो ऑप्शन ए इज़ कंसिडर्ड द करेक्ट ऑप्शन। देन नंबर 25 पर जाएं जी, इनफॉलिएबल और एरर। इनफॉलिएबल कहते हैं समवन हु कैन नॉट मेक एन एरर, ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा, क्वालिटी, ठीक है। इनफॉलिएबल कैन नॉट मेक एन एरर, तो एंड इम्पॉसिबल कैन नॉट हैव अ फ्लॉ, तो ऑप्शन ए यहाँ भी जो है दैट विल बी कंसिडर्ड द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। देन हॉबनॉब और कंपेनियंस, ठीक है, ये बिल्कुल आपकी फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, कि कंपेनियंस क्या करेंगे, हॉबनॉब कहते हैं इकट्ठा हो जाना, शुगर लगाना ज़रा, ठीक है, तो कंपेनियंस विल हॉबनॉब एंड प्लॉटर्स विल कंस्पायर। प्लॉटर कहते हैं जो प्लानर्स होते हैं, ईवल लोग जो होते हैं, शैतान सिफ्त लोग जो दूसरे के खिलाफ प्लानिंग करते रहते हैं, और कंस्पायर साजिश करना, ठीक है। तो 26 में फंक्शन है बेसिकली आपका जो रिलेशन बनना है, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन कि कंपेनियंस विल हॉबनॉब एंड प्लॉटर्स विल कंस्पायर। देन रॉक्स और जियोलॉजिस्ट, ये इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एंड प्रोफेशन के बारे में, कि अब इसमें वन लाइनर क्या बनेगा, जियोलॉजिस्ट स्टडी रॉक्स, कि जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो रॉक्स के बारे में इल्म हासिल करते हैं, एंड इन द सेम वे बॉटनिस्ट स्टडीज प्लांट्स, तो यहाँ भी जो है वो हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन ए विल बी कंसिडर्ड द करेक्ट ऑप्शन। देन हैंग और एग्जीक्यूट, ठीक है, ये दोनों सेम है। हैंग का मतलब भी जो है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट करना, और एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है, हैंग करना। तो टेस्टिफाई एंड कोरॉबोरेट, ये सिनोनिम्स थे, एंड ऑप्शन सी इज कंसिडर्ड द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। टेस्टिफाई और कोरॉबोरेट दोनों का मतलब सेम होता है। टेस्टिफाई गारंटी करना, किसी चीज़ को फिक्स करना कि यस ये बिल्कुल दुरुस्त है, और कोरॉबोरेट का मतलब भी यही होता है। देन नंबर 29 पर अगर आप आए, ठीक है, तो इसमें आपको नेक्स्ट जो आपका मिलेगा ड्रूल और लाफ। ड्रूल जो है वो बेसिकली कहते हैं इतना हंसना, इतना ज़्यादा हंसना कि आपकी जो है वो कह लें कि रालें जो है वो टपकना शुरू हो जाएं, उसको आप जो है वो कहते हैं ड्रूलिंग, ठीक है। तो ड्रूलिंग और लाफ इसमें क्या है जी, इंटेंसिटी का फ़र्क है कि कहका लगाना और इंतहाई कोई शिद्दत से जो है वो कहका लगाना। तो ग्रिजली और फ्लिंच ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। फ्लिंच होता है थोड़ा बहुत जिससे आपको खौफ महसूस हो, और ग्रिजली इंतहाई खौफनाक, ग्रूसम, बहुत ही शिद्दत के साथ जिसमें आपको खौफ महसूस हो। देन नेक्स्ट वन नंबर 30 आउंस और वेट। इसको अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है जी, आउंस इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ वेट। इन द सेम वे
एकड़ इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। ये मेजरिंग यूनिट्स हैं, तो एकड़ इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ एरिया। सो ये हमारे 38 MCQs हैं वो कंप्लीट हो गए आज के। 30 MCQs हमारे आज कंप्लीट हो गए एंड आई डू होप कि आपने ये लेक्चर जो है उसको समझ लिया होगा। हम अपने कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, आखिरी आपके चंद लेक्चर्स रह जाएंगे। सो कोशिश करें कि जो लेक्चर्स आपने पढ़ लिए हैं, जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, उनको एक बार रिविज़िट कर लें, रिफ़्रेश कर लें अपनी मेमोरी में। जो लेक्चर सुने हुए हैं उनको, अगर कोई नोट्स ऑब्वियसली आपने अपने बनाए होंगे, उनको देख लें, बिकॉज़ अब ऑब्वियसली आप लोग अपनी तैयारी के बिल्कुल आखिरी मराहिल में होंगे। और मैं हमेशा एक चीज़ बच्चों से कहता होता हूँ, आप बच्चों को भी कह रहा हूँ, हम सभी क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं। उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि एक टीम सपोज़ 20-20 मैच हो रहा है तो वो 38 ओवर बहुत अच्छा खेलती है, 20 अपने बैटिंग के ओवर भी और 18 बॉलिंग के ओवर भी, लेकिन आखिरी 2 ओवर बुरे करते हैं, 1 ओवर बुरा करते हैं और वो क्या करते हैं, मैच हार जाते हैं, ठीक है। इन द सेम अगर बैटिंग कर रहे हैं तो 38 ओवर बहुत अच्छा खेलते हैं, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, 18-19 ओवर बैटिंग भी बहुत कमाल करते हैं, लेकिन आखिरी ओवर जो है उनका कोई अच्छा नहीं जाता, तो क्या होता है, वो भी मैच हार जाते हैं। सो ये जो लास्ट मोमेंट्स होती हैं, ये आपके मैच के आखिरी ओवर होते हैं। इन पे आपने इजी नहीं होना होता, इन पे आपने रिलैक्स नहीं होना होता, ज़्यादा शिद्दत के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ काम करना होता है सो दैट कि आप सक्सेसफुल हो सके। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना कीजिएगा और पूरे दिल दिमाग से जो है मेहनत करें। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच बेटे, बहुत शुक्रिया।